Hi everyone. So today we are going to discuss general training task 1, that is letter writing. There is a great difference between task 1 of general training and academic. In academics they get pie chart, line graph, bar graph, table, flow chart, diagram to explain. But if you talk about general writing or general training, then task 1 consists of letter writing. So let's move ahead and check it out what it is all about. So if we talk about types here, then you have 3 types of letters here: formal, semi-formal and informal. I know you might have practiced letter, but here one thing which is different from what letters you have written in your school and college is that आपको इसमें एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ सिर्फ इंग्लिश चेक कर रहे हैं, तो एड्रेस इज नॉट टू बी रिटन इन दीज लेटर्स. सिंपल, यू हैव टू स्टार्ट विद डियर सर और डियर मैडम, or if you are writing an informal letter, you can also start like dear John, something like that. So of course you get informal letter, and if you talk about formal, then you can get business letter, you can write a complaint letter, you can write a request letter. So these type of letters you get in the form of questions. So now you are judged on 4 bases here: task achievement, cohesion, coherence, lexical resource and grammar. तो टास्क 2 में भी जो क्राइटेरिया है वो सेम है. आपको इन 4 बेसिस पर ही जज किया जाता है. जैसे कि टास्क अचीवमेंट हो गया. टास्क अचीवमेंट का क्या मतलब होता है? आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसी बारे में आप बात कर रहे हैं, एंड यू आर आंसरिंग व्हाट इज आस्क्ड. बी ऑन ट्रैक, डू नॉट गेट योर ट्रेन डीरेल्ड. आई मीन टू से जैसा पूछा गया है क्वेश्चन में वही बात करें, क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट है. तो टास्क अचीवमेंट का मतलब है कि जितनी चीजें पूछी गई हैं क्या वो प्रॉपर्ली आंसर्ड हैं या नहीं. सो यू गेट 25% मार्क्स फॉर दैट. कोहेरेंस, कोहेजन का मतलब है कि आपके सेंटेंसेस प्रॉपर्ली एक दूसरे से कनेक्टेड है. कनेक्शन तो हर चीज में जरूरी है, रिलेशंस में भी जरूरी है, तो राइटिंग में भी जरूरी है. कनेक्शन का मतलब है जैसे हम एक सेंटेंस को लिख रहे हो, दूसरे को दिस प्रॉब्लम, दिस से कनेक्ट कर रहे हैं, या हाउएवर, मोरओवर, फर्दरमोर, नेक्स्ट, ऑल्सो. So you need to use all these kind of connectors. Basically your aim should be कि one sentence is properly connected to the other sentence. So 25% marks for this. Lexical resource means your vocabulary. Do not use common words, use better vocabulary. And of course grammar, 25% marks for grammar. Grammar means punctuations, variety in tenses, variety in sentence structure, no spelling errors, and everything which needs to be included in the grammar part. So be careful about all these 4 things if you really want to get a better band score. So be careful. It carries 33% marks of your writing. You should write over 150 words. 150 words से ज़्यादा ऊपर ही लिखना है, बट ये ध्यान रखें कि 200 से ज़्यादा नहीं हो. हाँ, अब आपको मैं बताती हूँ कि लेटर सिर्फ एक लाइन का नहीं होगा. लेटर होगा, उसके साथ 3 सब पॉइंट्स भी दिए होंगे या कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, विच मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू. क्योंकि उसमें ये रहता है कि अब आपको बस उन तीनों पॉइंट्स को ही अपने आंसर में एक्सप्लेन करना है विद इन 150 to 200 वर्ड्स. देखिए, लेट्स सी हियर. जैसे ये क्वेश्चन है, यू हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम योर बैंक asking you to acknowledge receipt of a new bank card. Let me repeat, receipt. It's not receipt. Okay? Most of the students call it, or most of the people speak receipt. P is silent, P is silent. It is receipt of a new bank card. However, the card was missing from the envelope. Write a letter to the bank's head office. In your letter, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. आपको बैंक से एक लेटर मिला है, आपको एक रिसीट न्यू बैंक कार्ड की एक्नॉलेज करनी है या एक्सेप्ट करनी है, लेकिन उसके अंदर कार्ड ही नहीं था. जब आपने एनवेलप खोला तो रिसीट जो नया बैंक कार्ड है वो था ही नहीं. तो आपको बैंक हेड ऑफिस को लिखना है और ये बताना है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, उसमें कार्ड तो है ही नहीं. सो आपको क्वेश्चन में 3 सब पॉइंट्स दिए जाएंगे. एक्सप्लेन व्हाई यू आर राइटिंग, एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द मिसिंग कार्ड,
ask them what they intend to. इसका मतलब सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, तो आपको इनके बेसिस पर ही अपना आंसर फ्रेम करना है. गेटिंग मी? सो एक्सप्लेन व्हाई यू आर राइटिंग, आपको रीजन लिखना है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं. दूसरा, आप कंसर्न्ड हैं, आप चिंतित हैं मिसिंग कार्ड के बारे में, और उसके बाद आपको ये बताना है कि आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करें. मतलब या तो आपको कार्ड भेजें या फाइंड आउट करें कि वेयर द कार्ड हैज गॉन, बिकॉज यू आर डेफिनेटली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो ये तीनों पॉइंट्स पे आपको आंसर बेस करना है. हमेशा ध्यान रखें, इंट्रो में हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि लेटर क्यों लिखा जा रहा है. तो पहले आप यही बताएंगे कि मुझे लेटर मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें जो कार्ड है, दैट बैंक कार्ड इज, सॉरी द रिसीट, द कार्ड इज मिसिंग. एनवेलप तो है बट उसके अंदर ना तो कोई कार्ड है ना कुछ है. ठीक है, तो ये आपको इंट्रो में एक्सप्लेन करना पड़ता है. और बाकी जो नेक्स्ट डिटेलिंग है, जैसे कंसर्न अबाउट द मिसिंग कार्ड, क्यों आप कंसर्न्ड है एंड आप क्या चाहते हैं उन्हें वो करें. तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन होता है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. सपोज ये एक लेटर है. योर नेक्स्ट डोर नेबर ओन्स अ स्मॉल डॉग दैट बार्क्स थ्रू आउट द डे एंड द नाइट. ये प्रॉब्लम तो आप सब ने एक्सपीरियंस की होगी अपने आसपास भी. यू नो, आई गेट वेरी इरिटेटेड व्हेन देयर आर डॉग्स एंड दे बार्क throughout the day and the night. You sometimes really get irritated. I personally get irritated. Okay, write a letter. तो मुझे तो ये लेटर काफी काम आएगा. Write a letter to your neighbor requesting that something be done about the dog. तो अब आप क्या कर रहे हैं, अपने नेबर को ही लेटर लिख रहे हैं. वैसे तो नेबर को लेटर क्या लिखना है, घर जाओ चाय वाय पी कर आओ, जोक्स अपार्ट. सो वी हैव टू राइट अ लेटर टू द नेबर और उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि डॉग से रिलेटेड कुछ किया जाए क्योंकि इट इज़ डिस्टर्बिंग यू. अब आप इसके लिए कोई भी रीज़न दे सकते हैं. मुझे तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है. इफ आई एम रीडिंग समथिंग आई गेट अनॉयड. तो अब 3 सब पार्ट्स क्या है, आपको उस लेटर में क्या क्या लिखना है. रीज़न आप क्यों लिख रहे हैं, तो आप इंट्रो में रीज़न लिख देंगे कि पहले तो अपना नाम बताएंगे, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, समथिंग लाइक दिस, आई एम योर नेबर लिविंग इन दिस अपार्टमेंट, एड्रेस बताएंगे. फिर बाद में बताएंगे कि क्यों लिख रहे हैं, आप उनको बताएंगे उनके डॉग के बारे में. अब आप नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए. और ऑफ कोर्स लास्ट में नाइस रिस्पेक्टफुल स्टाइल में, क्योंकि आपके नेबर्स हैं. अब डॉग्स तो यू नो मेनी पीपल लव कीपिंग डॉग्स विद देम, तो गलती उनकी भी नहीं है, ना गलती बेचारे डॉग की है, इजंट इट. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि हम बड़ी ही रिस्पेक्टफुल स्टाइल में, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन इमिडिएटली बिकॉज इट इज़ रियली अफेक्टिंग माई चिल्ड्रन स्टडीज. हम रीज़न दे सकते हैं कि आप व्हाट यू वुड लाइक टू हैपन. तो इसमें आप ये भी बताएंगे ना कि आपको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, क्या रीजंस हैं. तो वो सब बताने के बाद अब लास्ट में बहुत ही रिस्पेक्टफुली उन्हें बोलेंगे कि प्लीज़ डू द नीडफुल बिकॉज इट इज़ रियली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स. या आप इसमें रीज़न ओल्ड दे सकते हैं कि हमारे घर में ओल्ड है एंड दे रियली गेट डिस्टर्ब, दे हार्डली आर एबल टू स्लीप बिकॉज they are at an age where it becomes very difficult for them to sleep in such noise. तो कोई भी रीज़न उठा के आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करें. या तो डॉग्स के लिए कौन सा ऐसा स्टेप उठाए जिससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है. ठीक है ना, तो यही फाइंड आउट करना है हमें. सो दिस इज हाउ 3 पॉइंट्स आर गिवन. आपको इन्हें उठा के अपना आंसर एक्सप्लेन करना होता है. कंप्लेन लेटर जो आते हैं उसमें कॉमन एग्जाम्पल्स इस तरह होती हैं, जैसे आप होटल में गए और आपको सर्विस अच्छी नहीं मिली, या रेस्टोरेंट में गए या आपने किसी चीज़ से सामान खरीदा और गुड्स फॉल्टी थे, तो इससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना पड़ता है. मोस्टली इन लेटर्स में 2 चीज़ें कॉमन है. आपको पहले एक्सप्लेन करनी होती है प्रॉब्लम कि एक्चुअली आई परचेज्ड कैमरा फ्रॉम योर शॉप. शॉप का नाम दे दो, अपना नाम बताओ, आई एम रेगुलर कस्टमर ऑफ योर डिपार्टमेंटल स्टोर, या जो भी आप बोलना चाहते हैं. और फिर मतलब पहले तो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से और फिर आप बताएंगे इसको सॉल्व कैसे करना है. सजेस्ट हाउ यू वांट इट टू बी रिजॉल्व. आप क्या चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए. सो दिस इज हाउ यू विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन. कंप्लेन लेटर में पर्टिकुलरली हमें इन 2 चीज़ों को ही आंसर करना है. प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है और आपको बताना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. या तो रिप्लेस कर दो आप हमारा गुड, या आप किसी अपने एक्सपर्ट को भेजो जो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके. तो हम इस तरह कोई भी सजेशन दे सकते हैं. डू टेक केयर.
150 वर्ड्स से ज़्यादा लिखना है, बट नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।